بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، کل ہماری بحث اور گفتگو صدقے کے سلسلے میں تھی۔ الحمدللہ آیات و روایات کے ذیل میں صدقے کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور آخر میں جو فوائد ہیں صدقے کے وہ بھی بیان کیے گئے۔ ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مختلف موضوعات کے تحت ہم گفتگو کریں گے، لہذا کل صدقے کے حوالے سے گفتگو تھی اور آج قرآنی حوالے سے ایک اور اہم گفتگو جو سماج اور معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ چنانچہ آیات و روایات کے ذیل میں اس موضوع کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور وہ موضوع ہے احترام والدین، جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت بنا ہوا ہے۔ یہ موضوع چونکہ آج دنیا اور ہمارا یہ سماج، ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ کلچر کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، لہذا اس کے تحفظ کے لیے اس ماہ صیام میں، ماہ مبارک رمضان میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کریں۔ اگر انسان فطری طور پر عقلی اعتبار سے صرف اتنا سوچ لے کہ کائنات میں روئے زمین پر ماں اور باپ وہ عظیم نعمت ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور پرورش کی پوری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی صرف تصور کر لینا کافی ہے اور یہی ان کے احترام کے لیے کافی ہے۔ علاوہ اس کے کہ اگر انسان عقلی اور فطری طور پہ صرف یہ سوچ لے کہ ہمارے ساری نعمتوں کا سبب، ہمارے وجود میں آنے کا سبب ماں باپ ہے، یہی سب سے بڑا احترام ان کا ہے، اگر یہی تصور کر لیں۔ لیکن اس کے علاوہ متون دینی میں، آیات میں، روایات میں کافی چیزیں احترام اور اطاعت والدین کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اس موضوع سے زیادہ شاید ہی کسی موضوع کو اہمیت دی ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اس موضوع کے پیش نظر، جو احترام والدین کا موضوع ہے، اطاعت والدین کا موضوع ہے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے رہیں، ان کا کیسے احترام کیا جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، یہ ساری بحثیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آتی رہیں گی۔ اگر صرف انسان کچھ آیات قرآنیہ ایسی ہیں کہ اگر اس پر تدبر کر لے اور غور و فکر کر لے تو یہ موضوع بالکل واضح ہو جائے گا۔ تقریباً 4 آیات کریمہ یہاں میں نے نقل کیا ہے کہ جس میں پروردگار نے
अपनी इबादत के फौरन बाद जो है माँ बाप के हवाले से गुफ्तगू की है। यानी कोई बीच में एक राबता और वास्ता भी नहीं है। पहले अपनी इबादत का तज़किरा किया है, उसके फौरन बाद बिला फसल जो है वो वालिदैन के साथ एहसान, नेकी और उनके एहतराम करने का जिक्र किया है। इसका मतलब ये है कि परवरदिगार की निगाह में ये मौजू बहुत ही हसासियत का हामिल है। वल्ला अपनी इबादत के बिला फसल बाद इबादत को अपनी अलहदा किया, क्योंकि इबादत में कोई शरीक नहीं हो सकता उसकी। इसको अकायद में तौहीद इबादी कहते हैं। तौहीद इबादी यानी इबादत की दुनिया में अल्लाह को एक मानना। चुनांचे मैं आयत पढ़ता हूँ, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23, 24, 25। ये पहली आयत पढ़ रहा हूँ कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपनी इबादत के फौरन बाद जो है वो माँ बाप के साथ एहसान का जिक्र किया है। इससे इस मौजू की अहमियत पता चलती है कि माँ बाप के साथ इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए और कैसे उनके साथ नेकी करना चाहिए। चुनांचे इरशाद होता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा। ये आयत करीमा पहले तो अल्लाह की इबादत के फौरन बाद जो है माँ बाप के साथ एहसान का जिक्र हुआ है। उसके बाद माँ बाप के साथ क्या क्या करना है वो सबको बयान किया गया है। अल्लाह का ये फैसला है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि सिवाय उसके किसी की इबादत न करो, यानी इबादत मखसूस अल्लाह के लिए। इसलिए अगर इंसान किसी शख्सियत के लिए सजदा करे तो जायज़ नहीं है। सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। उसके बाद वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ नेकी करो फौरन बाद। कोई बीच में एक वास्ता नहीं है आगे, जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का तज़किरा किया, फौरन बाद माँ बाप के एहसान का तज़किरा किया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, उसके बाद माँ बाप के साथ नेकी करो। फौरन बाद ये अल्लाह ने कहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। इन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे के आलम में पहुँच जाएं, यानी बूढ़े हो जाएं, माँ बाप में से कोई एक या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो इनको उफ भी ना कहो। उफ। वला तनहरहुमा, और इनको झिड़को नहीं। उफ, ये कलमे उफ ना कहो। उसके बाद कुरान कह रहा वला तनहरहुमा, इनको झिड़को नहीं। फिर कहा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब इनसे गुफ्तगू करो तो बड़े सलीक़े से गुफ्तगू करो, करीमाना और शरीफाना अंदाज में गुफ्तगू करो। देख रहे हैं, यानी माँ बाप से इंसान को किस तरीके से शरीफाना गुफ्तगू करना चाहिए, ये कुरान का फैसला है। वग़फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और क्या वग़फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने शानों को, यानी ये दोनों कहते हैं शानों को जब भी करो उनके सामने रहमत और मोहब्बत के साथ झुकाए रखो, एहतराम है। यानी अगर माँ बाप के सामने जब इंसान गुफ्तगू करे तो शरीफाना अंदाज में गुफ्तगू करे और उनके सामने अपने दोनों कंधों को झुकाए रखे, एक तरीके का ये एहतराम है। यहीं से ये बात भी साबित हो जा रही है कि अगर माँ बाप के सामने इंसान जो है शानों को झुका सकता है और कुरान ने इसकी मदह किया है, तो अब ये किसी भी उन्वान से कोई इसको बिदात नहीं कह सकता।
یعنی شانے کو اگر ائمہ خدا علیہ السلام کے مزارات پہ لوگ جا کے یہ احترام کے قائل ہوتے ہیں کہ شانوں کو جھکا دیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار کا ایک حکم ہے کہ اس طریقے سے ماں باپ کے سامنے شانوں کو جھکائے رکھو۔ دیکھ رہے کتنی چیزیں بیان کیا، پہلے تو بالوالدین احسانا، احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے یا دونوں تو ان کے سامنے اف نہ کہو۔ اب یہاں پہ ایک تفسیر ہے مرحوم علامہ طبرسی کی، انہوں نے اس آیے کریمہ کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ آخر یہ کیوں کہا گیا کہ جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کہو۔ بھئی آخر ان کی عمر جوانی بھی تو ہوتی ہے، ماں باپ جوان بھی ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ ادھیڑ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپے کی طرف پہنچتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیوں پروردگار نے الکبر کہا کہ جب یہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں تو اس وقت ان کے سامنے اف نہ کہو۔ آخر یہ بڑھاپے کا کیوں تذکرہ کیا؟ تو کہتے یہ ہیں کہ بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ انسان جب بڑھاپے کے عالم میں چلا جاتا ہے تو حرکتیں ان کی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے بچپنے میں ایک بچے کی ہوتی ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ جب ہم بچے تھے تو ہم جب یہ حالت ہماری پیش آتی تھی تو ماں باپ ہمارے ناز و نخرے برداشت کرتے تھے، کیونکہ سورہ یاسین میں ایک جگہ آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آیت بہت اہم ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جنہیں عمر دراز کر دیتے ہیں انہیں خلقت میں پلٹا دیتے ہیں۔ پلٹا دیتے کیا مطلب؟ جب بزرگی کی طرف لے جاتے ہیں تو خلقت میں ہم انہیں پلٹا دیتے ہیں، یعنی بچپنے کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں وہ حرکتیں ماں باپ کرتے ہیں یا کوئی بھی انسان، چونکہ ماں باپ کا تذکرہ جو بچپنے میں بچے کرتے ہیں وہی بالکل حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ لہذا اب اس عالم میں ہو سکتا ہے بچوں کو زیادہ غصہ ہو، نوجوان بیٹا ہو یا تو زیادہ غصہ ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار نے اس بات کی اشارہ کیا کہ جب بڑھاپے میں ایسا عالم ہو جائے تو اف نہ کہو، اس لیے کہ تم بھی ایک وقت ایسے ہی تھے، بچے تھے، ایسی حرکتیں کرتے تھے تو یہ برداشت کر رہے تھے، اب ان کا یہ عالم آ گیا اب تم برداشت کرو۔ دیکھ رہے ہیں ان دغیم مرحوم طبرسی نے مجموع البیان ان کی تفسیر ہے، اس میں یہ لکھا ہے اس کبر کا تذکرہ، کبر مانے بڑھاپا، بڑھاپے میں اگر کوئی چلا جائے تو ان کے کیوں بڑھاپے کا تذکرہ کیا، وجہ یہ ہے۔ وَإِلَّا وہ تو مطلقہ کہہ سکتا تھا احترام تو جوانی میں بھی کرنا ہے، لیکن جوانی میں کبر کی کیفیت نہیں، بڑھاپے کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے بچہ اف نہ کہے، کیونکہ جوانی میں ماں باپ جو ہے زیادہ بچے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں تو یہ کیفیت زیادہ طاری ہوتی ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تو ان کو اف نہ کہو۔ تو ایک کبر اس میں بیان کیا گیا۔ اف کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَا عَنْهُ۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے کم ترین آگ کا جو لفظ ہے وہ اف کہنا ہے، کم ترین کلمہ، یعنی اب اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں ہے زبان عرب میں۔ امام نے کہا کہ اگر کوئی اف بھی ماں باپ کے سامنے کہتا ہے تو وہ آگ ہو جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی سیگا پڑھے کہ میں تمہیں آگ کر رہا ہوں۔ اگر انسان جو ہے بیٹا جو ہے ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ آگ ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، امام نے کہا کہ ادنی الحقوق سب سے کم ترین وہ کلمہ جس کے ذریعے سے انسان آنکھ ہو جاتا ہے وہ اف ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ اگر عالم اللہ شیئن، اگر اللہ کسی اور چیز کو جانتا کہ جو اس سے پس سے کلمہ آئے، یعنی اف سے بھی اگر کوئی نیچے کلمہ ہوتا لنہا عنہ، تو پروردگار اس سے چھوڑ دیتا ہے، یعنی سب سے کم ترین کلمہ اف کا ہے۔
सबसे कमतरीन कलमा जो है वो उफ, इससे कमतर नहीं है कोई कलमा। अगर कोई इससे कमतर कलमा होता तो परवरदिगार उससे भी रोक देता। तो ये केवल उसके बाद जो है वला तनहर होगा, इनको झिड़की न दो। यकीनन ये तो तय है कि जब एक उफ इंसान नहीं कर सकता तो झिड़कना तो अलग बात है। ये तो बहुत बड़े अजाब और गुनाहे कबीरा का बाइस है। यानी ये जो है झिड़कना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, इन्ना अकबरल कबायर इंदल्लाहि यौमल क़ियामा अश्शिर्क बिल्लाह व क़त्लुन नफ्सिल मुअमिना बिग़ैरिल हक़ वल फ़रारु फ़ी सबीलिल्लाहि यौम तरजफ व उक़ूक़ुल वालिदैन। क़यामत के दिन गुनाहे कबीरा में सबसे बड़ा जो गुनाह होगा, गुनाहे कबीरा तो खुद बड़ा गुनाह है, लेकिन अकबर यानी गुनाहे कबीरा में भी जो सबसे बड़ा गुनाह है वो यहाँ पे पैगंबर ने 4 चीज़ को बयान किया है। पैगंबर ने 4 चीज़ को गुनाहे कबीरा में भी सबसे ज़्यादा जो है वो कबीरा बयान किया है। सबसे पहले अश्शिर्को बिल्लाह, यानी शिर्क बिल्लाह। क्या है शिर्क बिल्लाह का मतलब? अल्लाह के साथ किसी और को मिलाना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करार देना कि ये भी खुदा है, ये शिर्क है, ये बहुत बड़ा कबीरा है। उसके बाद वक़त्लुन नफ्सिल मुअमिना बिग़ैरिल हक़। 4 चीज़ें अल्लाह के नज़दीक बहुत गज़ब का बाइस है और गुनाह जो है जिसका कोई तसव्वुर मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि अकबरुल कबायर कहा गया है रिवायत में। यानी गुनाहे कबीरा में भी अकबर यानी बहुत बड़ा गुनाह कबीरा में भी सबसे बड़ा गुनाह जो है वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार दे, इंसान किसी और को उसका शरीक करार दे, ये गुनाह कबीरा है। दूसरी चीज वक़त्लुन नफ्सिल मुअमिना बिग़ैरिल हक़, किसी मोमिन को कत्ल करना बगैर हक के, नाहक कत्ल करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी भी मोमिन को अगर कत्ल हो रहा है उसका और कोई कातिल है तो कातिल अल्लाह के सामने कैसे पेश किया जाएगा वो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन पैगंबर कह रहे हैं इन्ना अकबरल कबायर, गुनाह ने कबीरा। देखिए शिर्क के बाद सबके बाद क्या है, मोमिन के नफ्स को बयान किया है। कितनी अहमियत है कि अल्लाह का शरीक करा देना सबसे बड़ा गुनाह। उसके बाद फौरन पैगंबर ने क्या कहा, किसी मोमिन को कत्ल करना। किसके साथ शुमार किया है, यानी जैसे मुशरिक लाए जाएंगे तो मुशरिक के साथ गोया मोमिन का कातिल आएगा। अल्लाह बगैर हक, बगैर हक नाहक इसलिए कहा, हो सकता है मोमिनी किसी मोमिन ने किसी को कत्ल कर दिया गया हो तो उसके किसास में उसको हो सकता है कत्ल कर दिया जाए, तो वहां पर हो सकता है। लेकिन बगैर किसास के नाहक कत्ल कर दे, नाहक का मतलब बगैर किसास के, यानी किसास उसे कहते हैं कि मुझे किसी ने अगर कत्ल किया तो हुक्म शरीयत यह है कि मेरे वरसा जो है मेरे कातिल को जो है कत्ल कर सकते हैं। ये शरीयत की तरफ से अथॉरिटी दी गई है। ये यहाँ पे उस मोमिन को कत्ल किया जाता है, ये हक के साथ है। लेकिन अगर किसास नहीं है और यूं कत्ल करना, ये अकबरुल कबायर है। 2, तीसरे जंग से फरार करना, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा, जैसे ये सब भागे थे पैगंबर को छोड़ के, जंग से फरार करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। पैगंबर अकरम को जंग उहद में लोग छोड़कर और दूसरे असहाब पैगंबर, यहाँ तक कि पैगंबर के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, रसूलुल्लाह के दांत टूट गए थे जंग उहद में। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने तीर अपने ऊपर लिए थे कि शायद कि जब पैगंबर ने देखा है तो पैगंबर रोने लगे मौलाए कायनात के जिस्म अतहर को देख कर कि इतने तीर लगे हुए हैं। लेकिन मौलाए कायनात मुस्कुरा रहे थे और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में जो मेरे ये ज़ख्म आए हैं ये बहुत कलील है, बहुत कम है, ये कुछ नहीं है। ये है अल्लाह की मारिफत और रसूलुल्लाह की अज़मत और उसकी राह में जो है कुर्बानी और शहादत का जज्बा और शहादत का हौसला। 3, चौथे व उक़ूक़ुल वालिदैन, अगर वालिदैन आग कर दें बच्चों को तो उनकी यही कैफियत है। ये 4 को पैगंबर ने कहा कि बहुत बड़ा ये गुनाह कर दिया और फरमा रहे हैं अल्लाह को।
एक चीज़ और रह गई, वबिल वालिदैन एहसाना जो ऊपर आया था, एहसान करो माँ बाप के साथ। एहसान का मतलब क्या है? मासूमीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि एहसान कैसे किया जाए माँ बाप के साथ, माँ बाप के साथ एहसान कैसे किया जाए। इमाम फरमाते हैं एहसान जो माँ बाप के साथ एहसान करने का जिक्र किया गया है, अल एहसानो अन तुहसिना सोहबतहुमा व अल्ला युकल्लिफहुमा अन यसअलाका शैअन मिम्मा यहताजून इलैहि व इन काना मुस्तगनियैन। एहसान ये है कि उनसे अच्छी गुफ्तगू करो। एहसान क्या है? एहसान का माना यह है कि वबिल वालिदैन एहसान आया है, माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान का माना क्या है? माँ बाप के साथ जो है अच्छी रफ्तार, अच्छी गुफ्तार करो, माँ बाप के साथ अच्छी तरीके से पेश आओ, ये एहसान है। उसके बाद अभी यही तमाम नहीं होता, बल्कि ये कहा जा रहा वह अल्लाह युकल्लिफहुमा, और इनको तकलीफ ना दो, किस चीज़ की? अयसअला का शैअन, यानी ये किसी चीज़ की तरफ मुहताज हो, वो सवाल ना करें, सवाल करने से पहले तुम उन्हें पहुंचा दो। ये एहसान है माँ बाप के साथ, यानी उन्हें एक चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने कहा नहीं, अभी कहने से पहले पहुंचा देना, ये एहसान है। अभी लबकुशाई माँ बाप ने नहीं किया, उससे पहले हाजिर कर देना, ये एहसान है। वह इन काना मुस्तगनियैन, अगरचे माँ बाप बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी हों, तब भी क्या है? उनकी खिदमत में सवाल करने से, अगर वो करोड़पति हैं, हम लखपति हज़ारपति भी नहीं हैं, लेकिन उनके सवाल करने से पहले ये चीज़ ले जाकर उनके पास पहुँचा देना। ये इमाम मासूम ने बयान किया है कि वबिल वालिदैन एहसाना का माना क्या है। कितनी एक एक चीज़ का माना रिवायात में बयान किया गया। इसे कहते हैं तफसीर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, यानी इन आयतों को जो है, इन आयतों की तफसीर मासूमीन के कलाम से की गई है। वबिल वालिदैन एहसाना तफसीर में ही आया, इस तरीके से उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके सवाल करने से पहले उन्हें दे दो। इंतकाल के बाद मासूम ने क्या कहा? बुढ़ापे में पहुंच जाए, अगरचे क्या नाम है उससे पहले भी उम्र को बयान करता, लेकिन बुढ़ापे में चूंकि बचपना पलट आता है, और इस उम्र में कहा उफ ना कहो। उफ क्या है? इमाम ने कहा सबसे कमतरीन कलमा ज़बान अरब में उफ है। अगर इससे भी कोई हल्का कलमा होता तो अल्लाह उससे भी रोक देता अगर होता, लेकिन अल्लाह जानता भी नहीं कि इससे कम कोई लफ्ज़ है, कलमा है। वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, करीम किसको कहते हैं? यानी उनके सामने जब गुफ्तगू करो तो करीमाना अंदाज में गुफ्तगू करो। करीमाना अंदाज क्या है? इमाम फरमाते हैं, इमाम सादिक की एक रवायत है, करीम गुफ्तगू करना किसे कहते हैं? माँ बाप के सामने अच्छे शरीफ लहजे में गुफ्तगू करो। शरीफ लहजा किसे कहते हैं? इमाम फरमाते हैं कि इंतहाई शरीफ लहजा ये है कि अगर माँ बाप अपने बेटे को मार भी रहे हो, किस बेटे को? बच्चे को नहीं, जवानी के आलम में, इस आलम में अगर माँ बाप किसी बच्चे को मारे, अपने बेटे को, तो उनके लिए दुआ करे कि परवरदिगार इनके गुनाहों को बख्श दे, इनको माफ कर दे। कितना है? अगर वो तुम्हें मारे भी माँ बाप भी, तो कहो कुछ उनको पलट के उफ ना कहो, तनहर हो माँ, झिड़को नहीं, बल्कि अल्लाह से क्या कहो? परवरदिगार इनके गुनाहों को माफ कर दे, इन्होंने बख्श दे। कितनी अल्लाह। एक चीज़ गुनाह कबीरा, ये सारी चीज़ें जो करना, माँ बाप का की बेहतरामी, सारी चीज़ें गुनाह कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबाइर पैगम्बर ने कहा। एक और रिवायत यही पे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, मन नज़रा इला अबवैहि नज़र मा कतिन वहुमा ज़ालिमान लहू लम यक़बलिल्लाहु लहू सलातन। अगर कोई माँ बाप की तरफ गज़बनाक निगाह से देखता है, तेज निगाह से, गुस्से के आलम में माँ बाप को कोई देखता है, अगरचे वो माँ बाप जालिम ही क्यों ना हो। देख रहे हैं, इमाम कैद लगा रहे हैं, अगर कोई माँ बाप की तरफ निगाह कर रहा है जबकि वो माँ बाप जालिम है, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम फरमाते हैं अगर कोई माँ बाप की तरफ गुस्से के आलम में निगाह करता है तो परवरदिगार उसकी नमाज को कबूल नहीं करता, उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। एक आयत
अहमियत क्या थी। 4 आयतें मैंने कहा था, इसी में तफसील है। ये एक आयत तफसीली थी और 3 आयतें मैं तेजी से पढ़ता हूँ कि देखें अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद जो है माँ बाप की अहमियत को बताया। इस अहमियत को पेश नज़र रखें और इन आयतों में जितनी चीज़ों को बयान किया 1 2 3 4 इस तरीके से उन सबको नज़र में रखें। दूसरी आयत पढ़ना हूँ, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालहु फी आमैन अन इश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। देख रहे हैं दूसरी भी आयत, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। ये यहाँ पे हमने जो है वसीयत किया है, यानी अल्लाह कह रहा हमने वसीयत किया है वालिदैन के, इंसान को वालिदैन के हवाले से। हमलत हो उम्महु, एक माँ अपने बेटे को जो है हमले करती है, इस तरीके से उसको लेके चलती है कि कोई किसी को इस तरीके से हमले नहीं करता है। दुनिया में ये माँ की एक आज़मत है कि ये कुरान ने बयान किया, अल्लाह ने इंसान को वसीयत किया है माँ बाप के हवाले से। हमलत हो, खुसूसन माँ की अहमियत, हमलत हो उम्महु, एक दुख और दर्द के बाद दूसरा दुख और दर्द बर्दाश्त करते हुए बच्चे को जो है हमले किया है। इस तरीके से कुरान कहता कोई किसी को नहीं हमले करता। वफिसालहु फी आमैन, और 2 साल इनको दूध पिलाया है। एक दुख दर्द को कितना कुरान हस्सास से एक एक चीज को बयान कर करके उसके बाद बेटे को मुतवज्जे कर रहा है, औलाद को मुतवज्जे कर रहा है। इसने हमले किया, कोई किसी को नहीं हमले करता। इसने जो है 2 साल दूध पिलाया, उसके बाद दूध छुड़ाया, उसके बाद क्यों ऐसा किया, अनिश्कुर ली वलिवालिदैका। अब यहाँ पे जब ये आलम हुआ कि माँ ने हमले किया शिकम में और उसके बाद 2 साल दूध दिया, अब ऐसे आलम में मेरा शुक्रिया अदा करो क्योंकि मैं असले रब हूँ। उसके बाद क्या कहा, वलिवालिदैहि, फिर मेरे बाद अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, अपने शुक्रिया के बाद वालिदैन का शुक्रिया रखा है। अल्लाह अकबर। रिसालतुल हुकूक, यहाँ पे चूंकि ये आयत के ज़िम्न में वालिदैन का शुक्रिया अदा करना है। माँ ने हमले किया है, जो कोई किसी को हमले नहीं करता। रिसालतुल हुकूक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक किताब है, वही किताब जिसका जो है सहीफतुल हुकूक का है। सहीफतुल हुकूक जो है उसी का तर्जुमा और शरह है। इमाम ने किताब लिखी है रिसालतुल हुकूक। इन्हीं आयतों की तरफ इमाम ने 2 हक को इशारा किया है। 50 हक है रिसालतुल हुकूक में, सहीफतुल हुकूक उसी का तर्जुमा और शरह है जो मैंने किया है। उसमें एक माँ के हक को देखिए आयत से कैसे मरबूत कर रहे हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। माँ के पहले हक को बयान करते हुए कह रहे हैं, फ़हक़्क़ु उम्मिका अन तअलमा अन्नहा हमलतका हैसु ला तहमिलु अहदुन अहदा। ये इमाम सज्जाद रिसालतुल हुकूक अपनी किताब में ये लिखते हैं कि याद रखो तुम्हारी माँ का हक ये है कि जान लो कि उसने तुम्हें हमले किया है, तुम्हें उठाया है इस तरीके से कि कोई किसी को नहीं उठाता। देख रहे हैं, वही कुरान का बिल्कुल नतीजा। वहाँ क्या कुरान ने कहा, वहनन अला वहनिन, इमाम ने कहा ला तहमिलु अहदुन अहदा, एक दुख के बाद दूसरा दुख उठाया है, उसके बाद हमले करते हुए आगे बढ़ी हैं। और इमाम कह रहे हैं कि ला तहमिलु अहदुन अहदा, कोई किसी को इस तरीके से हमले नहीं करता। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी शफकत कौन देता है। उसके बाद कहा वअतअमतुका मिन समरति क़ल्बिहा, और उसने खूने जिगर से तुम्हें ग़िज़ा दिया है, खूने जिगर उसने पिलाया है। अल्लाहु अकबर। अजीब ताबीर इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ला युतइमु अहदुन अहदा, और ये वो खूने जिगर जो माँ देती है कि कोई किसी को इस तरीके से खाना नहीं देता है, ग़िज़ा नहीं देता है। ये जान लो ये माँ का हक है, याद रखना इमाम फरमा रहे। उसके बाद जहाँ ये हक बयान किया, दूसरा हक सिर्फ बाप का इमाम बयान करते हैं कि वह अम्मा हक को अबी का, दोनों आयतें शुक्रिया करो। ये है वह अम्मा हक को अबी का, और तुम्हारे बाप का क्या हक है, फ़तअलमु अन्नहु अस्लु का, जान लो तुम्हारा बाप तुम्हारी असल है। वह अन्नका फ़रअहु, और तुम उसकी शाख हो, असल वो जड़ है।
तुम उसकी शाख हो। वह लौला हो लम तकुन, इमाम फरमा रहे मा अन्नका लौला हो लम तकुन, अगर ये बाप न होता तो तुम दुनिया में ना होते। उसके बाद मुसलसल इमाम और बयान कर रहे हैं, वो सहीफ़े हुकूक में सारी चीज़ें मैंने लिखी है, जो इमाम की किताब रिसालतुल हुकूक है उसके ज़िम्मे में। उसके बाद इमाम ने कहा कि याद रखो कि तुम किसी भी बुलंदी पर पहुंच जाओ, याद रखो कि वो जो कुछ हो तुम इसकी वजह से। अगर सुल्तान हो जाए, बादशाह हो जाए, आलिम हो जाए, मर्ज तकलीद हो जाए, लेकिन अगर बाप आ जाए तो एहतराम में अपनी जगह से, अगर वो जाहिल क्यों ना हो, इस तरीके से एहतराम सिखाया है। वल्ला ये हो सकता है अगर एक लम्हे के लिए एहतराम खत्म हो जाता, खत्म। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए यही मिलता है कि जब सल्तनत मिल गई, बादशाहत मिल गई, आज़ीज़ मिस्र बन गए, उसके बाद जब उनके वालिद मिलने के लिए आए हैं तो ये पूरे एक जाहो हसन के साथ जब पहुंचे हैं तो रिवायतों में है कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम एहतराम पिदर में घोड़े से नीचे नहीं उतरे। उसके बाद जिब्रील नादिल हुए और कहा कि यूसुफ अपनी हथेली को देखो, तो जब हथेली को देखा तो नूरे नबूवत उनकी हथेली से जा चुका था। यानी ये तय हो गया कि यूसुफ अब नूरे नबूवत तुम्हारी हथेली में जो है वो तुमसे ले लिया गया है, तुमने बाप का एक एहतराम नहीं किया, जबकि गुनाह नहीं है, तर्के औला था। तर्के औला पर क्या किया, जैसे जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से तर्के औला हुआ था, तर्के औला हुआ, लेकिन अल्लाह ने नूरे नबूवत को ले लिया। नूरे नबूवत लेने का मतलब यह है कि फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल में कोई नबी नहीं हुआ। इतना अहम चैप्टर ये इमाम सज्जाद हतमन, इसीलिए लोग कहाँ बेचारे पढ़ते होंगे। रिसालतुल हुकूक उर्दू में कर दिया, मैं किताब इतनी खुले रखी हुई है, लेकिन तौफीक नहीं थी। कितनी अहम अहम चीज़ें बयान किया है इमाम ने। 2 आयत हुई, तीसरी आयत एहतराम माँ बाप का। तीसरी आयत में वहीद अखज़ना मीसाक बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। फिर वही आ गई कि हमने अहदो पैमान लिया बनी इसराइल से कि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें, व बिल वालिदैनि इहसाना। फिर आ गया है वालिदैन के साथ, यानी अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद एहतराम रखा। क्या किया, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। देख रहे हैं, फिर वही सूरह मुबारक है बकरा की आयत नंबर 83। फिर चौथी आयत में बयान करके ये आयत का चैप्टर खुलू, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैन एहसाना। क्या हुआ यहाँ, अल्लाह कह रहा वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह का शरीक करार न दो। वबिल वालिदैन, बार बार अपनी इबादत के फौरन बाद जो है माँ बाप के साथ नेकी को नारा है, उनके साथ हुस्न सलूक करो, हुस्न सलूक करो। हुस्न अहमियत कितनी है इस मौजू और इस टॉपिक की, सब्जेक्ट। सूरह मुबारक है निसा आयत नंबर 36। ये 4 आयतें जो बयान किया कि परवरदिगार ने इस अहमियत के पेश नज़र अपनी इबादत के बाद वबिल वालिदैन एहसाना कहा है। अच्छा, अब एक सवाल ये होता है यहाँ पर, मुमकिन है कोई पूछे क्या माँ बाप अगर काफिर हो तो उनका भी एहतराम करना है? माँ बाप मोमिन ना हो, काफिर हो, तो कुरान कह रहा है अगर माँ बाप काफिर भी हो तब भी उनका एहतराम करो। एहतराम, इस्लाम के फलसफे को समझना बड़ा मुश्किल है। इस्लाम के फलसफे को समझना बड़ा मुश्किल है। अगर ये जो हैं मुशरिक हो, काफिर हो, तुम मुसलमान मोमिन हो गए हो, लेकिन तब भी अपने माँ बाप के एहतराम को तर्क ना करो। कितने अहम मसले को बयान किया है। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे असले हैं, उनका एहतराम करो। मुमकिन है तुम्हारे हुस्न सलूक के साथ तुम्हारे मजहब की तरफ पलट आए। यानी एक अहम पॉलिसी है इस्लाम की ये कि माँ बाप का एहतराम इस आलम में भी तर्क ना करो कि एक तो तुम्हारे माँ बाप हैं ही हैं, दूसरे तुम्हारे हुस्न सलूक के साथ तुम्हारे मजहब पे आ जाए। जैसा कि एक ईसाई इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और आन के कहता है कि मौला मेरे माँ बाप ईसाई हैं, क्या मैं उनके साथ खाना खा सकता हूँ? तो इमाम ने कहा
कि अगर वो सूअर वगैरह न खा रहे हों, दूसरी चीज़ें खा रहे हों, तो उनके साथ ग़िज़ा खा सकते हैं। और आज उलमा का ये फतवा भी है कि अहले किताब ईसाई और यहूदी के साथ खाना खा सकते हैं, उनके रेस्टोरेंट में उनके साथ नजिस नहीं है। अलबत्ता ये कि अगर वो सूअर वगैरह या गोश्त वगैरह वो खिला रहे हैं तो उससे परहेज़ करें, क्योंकि वहाँ ज़बीहे का इल्म नहीं है और सूअर जो है हराम गोश्त हमारे यहाँ, लिहाजा वो नहीं खा सकते और बाकी। अब ये इमाम के पास आया मसीही और ईसाई और कहा कि मौला मेरे माँ बाप ईसाई हैं और मेरी माँ नाबीना है, मैं इनके साथ क्या करूँ? इमाम ने कहा हुस्न सलूक करो, उनकी खिदमत करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब कहते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दस्तूर के मुताबिक जब ये जाता है, इस्लाम के नुक्ते नज़र से अपने माँ बाप की खिदमत करता है, तो माँ एक दिन पूछने लगती है, बेटा तुमने तो कभी इस तरीके से मेरा एहतराम नहीं किया, आखिर तुम इस मज़हब पर आने के बाद ऐसा एहतराम मेरा क्यों कर रहे हो? तो कहा मेरे पेशवा, मेरे रहनुमा, मेरे रहबर, मेरे इमाम ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अपने मज़हब के मुताबिक तुम्हारा ऐसा एहतराम करूं। तो माँ कहती है, बेटा जब इस मज़हब का पेशवा ऐसा है तो अब मुझे कलमा इस्लाम बताओ, मैं भी मुसलमान होना चाहूँगी। एक बेटे के इस्लाम में आने के बाद अगर इस्लाम के जो है एहतराम के रियायत करते हुए माँ बाप के साथ वही हुस्न सलूक करता है, तो न सिर्फ ये कि वो अपने बाप और माँ का हक अदा कर रहा है, बल्कि गोया अपने किरदार से दावत दे दिया इस्लाम की तरफ। और इमाम ने जो ये किरदार, इमाम जानते थे इल्म इमामत से ये जाएगा, जो इस्लाम की तालीमात वहाँ तक पहुँचेगी। इसीलिए ज़रूरत है कि अफसोस यही है कि आज हमारे इस्लाम की तारीफ यूरोप और दूसरे जगहों पे जो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रही, और उसकी एक वजह जहाँ इस्लाम पहुँचना चाह रहा है, कहीं अलकायदा बेकायदा ये सब बुरूज निकाल के इस्लाम की तालीमात को दबा दे रहे हैं। वल्ला जैसे उस ज़माने में ईसाई सिर्फ एक माँ बाप के एहतराम की रिवायत और सलीके को देखकर और सीख कर नाबीना महसूस करके वो मुसलमान हो गई, तो आज अगर ये एहतराम की सारी चीज़ें पहुँचती यकीनन मुसलमान होते लोग। लेकिन अलकायदा ये सब निकाल के इस्लाम को बदनाम करने के लिए टाइटल पेश किया जा रहा है, देख रहे हैं ना। हाँ, ये माँ बाप जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, इनका एहतराम करो। सूरह लुकमान आयत नंबर 15 में है, इन जाहदा का अला अंतुश्रिका भी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। हाँ, अगर वो तुम्हें इसरार करें और तुम्हें अपने मजहब की तरफ दावत दो, मुशरिक माँ बाप और काफिर, कि तुम हमारे मजहब पे आ जाओ, बस यहाँ पे इताअत ना करो। हर जगह माँ बाप की इत्तिबा है, लेकिन जहाँ इताअत अल्लाह की इताअत से टकरा जाए फिर वहाँ माँ बाप की इताअत नहीं है। सूरह लुकमान आयत नंबर। लेकिन हाँ, इनके साथ हुस्न सलूक जरूर करो, इस बात में इताअत ना करो, लेकिन इनके साथ नेकी से पेश आओ। सूरह लुकमान, ये सब आयतें हम पाते हैं, लेकिन अगर ज़रा ज़रा तवज्जो हो जाए इन आयतों पर, कमाल हो जाएगी। अब 2-3 चूँकि नरजिस भी है, ये कहे कि बाबा सिर्फ आयत और रिवायत 1-2 वाक़या सुना रहा हूँ एहतराम वालिदैन में और तमाम कर रहा हूँ। गुफ्तगू बहुत अहम वाक़या है। आया निगाह पैगंबर में माँ बाप के एहतराम की अहमियत क्या है, पैगंबर ने एक जुमले के जरिए से बयान कर दिया। एक शख्स आया, नौजवान था, पैगंबर अकरम की खिदमत में और कहा, या रसूल अल्लाह, इस वक्त आलम इस्लाम जंग के हालत में है, लोग जिहाद करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे रोक रही है, क्या मैं जिहाद के लिए जाऊं या अपनी माँ की खिदमत करूं? तो इमाम ने कहा, अगर वाजिब किफ़ाई तक लोग वहाँ हो गए हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत में रहो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अपने माँ बाप की खिदमत करना उस जिहाद से बेहतर है, लेकिन कब तक? जब तक कि अगर वाजिब ऐनी जाना है तब तो नहीं रुकना है। एक है वाजिब ऐनी, एक है वाजिब किफ़ाई। वाजिब ऐनी जो हर एक पे वाजिब है, जैसे नमाज सुबह मगरिब ये सब, रोज़ा वाजिब ऐनी, लेकिन नमाज मैयत वाजिब किफ़ाई। अगर कुछ लोग नमाज पढ़ दिए तो बाकी सबके गर्दन से साथी है, लेकिन अगर कोई ना पढ़े तो सब गुनहगार है। वाजिब किफ़ाई मसलन अगर उधर लश्करे बातिल जो है 1000 है, इधर भी 1000 चाहिए अफराद,
वाजिब के अगर 1000 मुकम्मल हो गए तो पैगंबर गोया फरमाना चाह रहे हैं कि वाजिब के पाई की हद तक हो गए हैं, अब तुम अपने माँ की खिदमत में रहकर माँ की खिदमत करो, ये उस जिहाद से अफजल है, अब जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर इतने अपराध नहीं हुए हैं तो फिर जाना, ये जिहाद के हवाले से एक अहम बात है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआ लेने का नतीजा क्या है? इसीलिए कहते हैं जब भी कोई अम्र मुश्किल पेश आ जाए तो इंसान माँ से दुआ करने को करे। चुनांचे वाक़या मशहूर है कि हज़रत अली अकबर जब मैदान क़िताल में गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आके उम्मे लैला से कहा कि अली अकबर के मुकाबिल में एक नामी गिरामी पहलवान आया है, मेरा बेटा बहुत भूखा प्यासा है, मैंने सुना है रसूलुल्लाह से और रिवायतों में है कि माँ की दुआ बेटे के हक़ में मुस्तजाब होती है, लिहाजा तुम दुआ करो। उम्मे लैला ने दुआ किया और हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को उस पर फौकियत और पद नसीब हुई, अली अकबर वापस आए। तो माँ की दुआ बेटे के हक़ में मुस्तजाब है, लिहाजा जब कहीं कोई मुश्किल में इंसान हो तो माँ से कहे कि दुआ करो। इब्ने जुनैद एक आलिम गुजरे हैं, इब्ने जुनैद पहले अहले सुन्नत थे, आलिम, लेकिन बाद में शिया हो गए। इब्ने जुनैद इस्काफी, इब्ने जुनैद कहते हैं कि मैं एक दिन दरिया के किनारे, सुनो बेटा इस वाक़े को, अहम, बहुत अहम। इब्ने जुनैद इस्काफी कहते हैं कि मैं एक दिन दरिया के किनारे से गुजर रहा, दरिया के किनारे से गुजर रहा था, मैंने एक अजीब मंजर देखा। इब्ने जुनैद इस्काफी कहते हैं कि मैंने एक अजीब मंजर देखा, और वो मंजर ये था कि मैंने देखा एक बिच्छू बड़ी तेजी से आ रहा है, एक बिच्छू जो है बड़ी तेजी से आ रहा है, जहाँ मैं देख रहा हूँ। उसके बाद दरिया से एक कछुआ निकल के आता है, बिच्छू करीब जाता है और कछुए की पुष्ट पे सवार हो जाता है। सवार होकर जुनैद बगदादी कहते हैं मैं देखा कि दरिया के उस तरफ जाके इसके पुष्ट से जो है वो बिच्छू उतर जाता है, और उसके बाद वहाँ एक दरख्त है, दरख्त के नीचे एक जवान सोया हुआ है, और क्या देखा कि एक सांप है जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और उसको मारना चाह रहा है, काटना चाह रहा है। ये बिच्छू जाता है और फौरन जो है उस सांप को डंक मारता है, और मारने के बाद सांप जो वही मर जाता है। उसके बाद फिर बिच्छू जो है जैसे गया था वैसे फिर वापस हो गया। इब्ने जुनैद कहते हैं कि मैंने उस नौजवान को बेदार किया, और बेदार करने के बाद ये कहा कि ये बताओ तुमने क्या कोई नेक काम किया है आज? कहा बात क्या है? कहा ये सांप देख रहे हो, ये तुम्हें काटना चाह रहा था, ये सांप तुम्हें काटना चाह रहा था। लेकिन पूरा वाकया बताया, ऐसे ऐसे एक बिच्छू आया और उसने इसको डंक मारा और तुम बच गए। अब ये बताओ कि तुमने कौन सा ऐसा नेक काम किया, तुमने कौन सा ऐसा नेक काम किया था? तो उसने कहा मैंने आज एक काम किया था नेक, वो ये है कि मेरी माँ ने अपने पानी का ज़र्फ जो था उसको भरने के लिए कहा, मैंने सिर्फ उसी को भर दिया। एक छोटा सा काम माँ की खिदमत किया कि माँ ने कहा कि मेरा बेटा, मेरा ये जो है ज़र्फ है, ये गिलास है या जो भी है, इसको भर दो। माँ के कहने पे उसको भर दिया। कहा मैंने एक नेक ये काम किया। दूसरा नेक ये काम ये किया कि मैं जब आ रहा था रास्ते में और यहाँ पर मैंने देखा कि एक आलिम अपने घोड़े पे सवार हो रहा था, मैंने उस घोड़े की रिकाब को जाके पकड़ लिया ताकि ये आलिम दीन घोड़े पर सवार हो जाए। दूसरा एक काम किया। इसका मतलब ये है कि दो चीज ने इसको बचा दिया, एक माँ की दुआ और दूसरे आलिम का एहतराम। कहा आज मैंने ये दो काम किए। देख रहे हैं परवरदिगार कैसे बचाता, कैसे बिच्छू को रवाना किया,
कैसे वो दरिया से उसको हुक्म दिया कि निकल के इसको अपनी पुष्ट पे तुम सवार करो। यहाँ इसको अमर किया कि तुम जाओ वहां दरिया के किनारे बीच, और उसके बाद कछुए से कहा तुम निकल के साहिल और किनारे आओ। वो निकल के आया और इतने किनारे आया कि उसकी पुष्ट पे सवार हुआ, और वो जैसे उसको अमर किया गया था कि दरिया के उस पार ले जाके उतार दिया, और जाके जो कहा था परवरदिगार ने उस सांप को डंक मार देना, डंक मार दिया। और उसके बाद वो जो है महफूज रह गया। ये माँ की दुआ है, ऐसे ही माँ की दुआ है। अब माँ की दुआ खुदा न करे। बनी इसराइल में जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता है, उनकी औलाद को बनी इसराइल। बनी इसराइल में एक आबिद जाहिद था, माँ ने बद्दुआ कर दिया था, उसको ऐसी सजा मिली कि वो सजा छुपाए उससे छुप ना सकी। किताबों में बड़ी तफसीर से इसका वाकया मौजूद है। मेरे पास एक किताब है, कभी पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ये एक वाकया बद्दुआ का, चूंकि ये हमारे उम्मत पैगंबर से मरबूत है, वो बनी इसराइल से है, लिहाजा इसी को आखिरी वाकया सुना रहा हूँ। नरजिस गौर से सुनो और तमाम करवाओ इसी पे गुफ्तगू। पैगंबर अकरम कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था और मैंने देखा कि एक कब्र से बड़े चीख और पुकार की आवाज आ रही है। एक चीख और पुकार की अजीब आवाज आ रही है। पैगंबर उस कब्र के पास गए और जाके कब्र पे पैर मारा और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, जबान से कहा अल्लाह, जो उसमें दफन किया गया था उससे कहा अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से उठ खड़े हो। वो कब्र शिकस्ता होती है और नौजवान बाहर आ जाता है। और उसके ऊपर जो चीख और पुकार, वो एक अजाब हो रहा था, उसके ऊपर गुर्ज, आग की एक गुर्ज जो है लगाई जा रही थी और उससे मारा जा रहा था। उसके बाद आलम ये हुआ कि पैगंबर कहते हैं कि मैंने जनाबे सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद को कहा इसकी माँ को तलाश करो, इसकी क्या माँ है दुनिया में, अगर है तो इसको तलाश करके लाओ कि इसकी माँ कौन है। जनाब गए और जाने के बाद लेकर आए। आने के बाद जब माँ आई, कहा ये बताओ ये तुम्हारा बेटा है? कहा हाँ। कहा इससे बड़ा सख्त अज़ाब हो रहा था, मैं अभी घर से गुजर रहा था, आखिर वजह क्या है? क्या तुमने इसके हक में बद्दुआ किया है? कहा हाँ, मैंने इसके हक में बद्दुआ किया। कहा 3 दिन पहले इसने मेरी बेहतरामी किया और मैंने इसके हक में बद्दुआ किया, 3 दिन के बाद ये मर गया। देखे माँ की बद्दुआ का असर 3 दिन के बाद। इसीलिए माँ को जो है जल्दी बच्चों के हक में बद्दुआ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दुआ फौरन कबूल हो जाती है, दूसरी चीज़ें कह दे, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो बच्चों के हक में वो हो। माँ आई तो अजाब हुआ। एक तो माँ ने बद्दुआ किया, 3 दिन के बाद मर गया। दूसरे ये कि कब्र में भी अजाब रहा। रहमतुल लिल आलमीन ने कहा इसकी माँ को बुला जाओ। पैगंबर कहते हैं कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ उसकी माँ से। उसकी माँ से कहा बच्चे की कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मेरी वजह से इस बच्चे को माफ कर दो। कहते हैं कि माँ ने फौरन हाथों को आसमान की तरफ किया और कहा खुदाया तुझे इस रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता इस मेरे बेटे पे और अजाब सख्त कर दे। माँ इतनी नाराज थी, कहा तुझे रहमत, पैगंबर कह रहे लेकिन कह रहे कि रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता इस पे अजाब और ज्यादा कर दे। अब और अजाब शदीद हो गया। अल्लाह ने अजाब को रोका नहीं, अजाब और शदीद होने लगा। वही आग की जो है गुर्ज लगने लगी इसके ऊपर। फिर जनाब सलमान को भेजा, मेरे अहले बैत को लेके आओ, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेके आओ, हसन को लेके आओ, अली मुर्तज़ा को लेके आओ, हुसैन को लेके आओ, सबको यहाँ पे लेके आओ। सब आ गए। उसके बाद जनाब ज़हरा से कहा पैगंबर ने कि बेटी तुम इससे सिफारिश करो, अपने हक का वास्ता दो कि इसे माफ करो।
शहजादी आगे बढ़ी और इसकी माँ से कहा, मैं हबीबतुल्लाह हूँ, अल्लाह की हबीबा हूँ, तुझे मेरा वास्ता अपने बच्चों को माफ कर दे। उसने हाथों को उठाया, फिर वही जुमला का, परवरदिगार ये तेरी हबीबा है, हज़रत ज़हरा है, मैं बद्दुआ कर रही हूँ मेरे बेटे पे अज़ाब और शदीद कर दे। अज़ाब और शदीद हो गया। इमाम अली आगे बढ़े, इमाम अली ने अपने हक का वास्ता दिया, फिर हाथों को बुलंद किया, कहा खुदाया अली इब्न अबी तालिब का वास्ता मेरे बच्चे पे और शदीद अज़ाब कर दे। फिर इमाम हसन आगे बढ़े और कहा तुझे मेरे हक का वास्ता, तुम क्यों नहीं अपने बच्चे के हक में दुआएं खैर करते, इसको माफ़ कर दो, अजाब में मुब्तला है। फिर उसने हाथों को उठाया, कहा खुदाया हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का वास्ता मेरे बच्चे पे अजाब और शदीद कर दे। इस पर मुसलसल बद्दुआ करी। अब कौन सी बात थी? पैगंबर ने पूछा, आखिर वजह क्या है कि तुम अपने बच्चे से इतना नाराज हो, इस तरीके से बद्दुआ कर रहे हो? कहा मैं 3 दिन 4 दिन पहले, 3 दिन हुआ था इंतकाल हुए, जो कुछ भी उससे पहले हुआ क्या? कहा कि इसने इसकी बीवी से और मुझ में कुछ निज़ा और झगड़ा हुआ, और झगड़े में आखिर में मैं घर के तनूर में गिर गई, मेरा सीना जल गया, मेरा जिस्म जल गया, लोगों ने मुझे बचाया, और अब भी मैं सीने पे हाथ रखी हूँ, मेरी हालत गैर है, मेरा सीना जल चुका है, मेरा जिस्म या रसूलुल्लाह जला हुआ है, इसलिए बार बार मैं बद्दुआ कर रही हूँ। अब कोई नहीं रहा। पैगंबर अकरम ने सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन से कहा कि ये हुसैन अब तुम सिफारिश करो। ठीक है, इस पे बेटे ने सुल्म किया, लेकिन मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, इसके बेटे से अपराध छूट गया। अब हुसैन इब्ने अली आए करीब और उस ज़ईफ़ा से कहा कि तुम्हें मेरे हक का वास्ता अपने बेटे को माफ कर दो। माँ ने बुलंद किया हाथों को और चाहा कि फिर बद्दुआ करे, लेकिन फौरन हुसैन के कदमों पे गिर गई, और गिरने के बाद कहा कि खुदाया हुसैन इब्ने अली, हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन और इस नवासे रसूल का वास्ता मेरे बच्चे को माफ कर। जब हुसैन ने हुसैन का वास्ता दिया तो उसने जो है दुआएं खैर किया बच्चे के हक में, और बच्चा माफ कर दिया गया। तो पैगंबर ने पूछा कि आखिर वजह क्या है कि तुम, जब मैंने कहा, शहजादी फातिमा ने कहा, अली मुर्तज़ा ने कहा, हसन ने, तो तुमने जो है माफ़ नहीं किया। हुसैन इब्ने अली का जब वास्ता दिया गया तो माफ़ क्यों किया गया? कहा जब मैंने फिर बद्दुआ के लिए हाथ उठाया तो मैंने देखा कि कुछ मलक हैं जो गुर्ज़ आहनी लेकर मेरी तरफ आ रहे हैं। तो समझ गई कि अब मसला जो है मुश्किल हो गया है, लिहाजा हुसैन इब्ने अली के कदमों पर गिर गई और कहा खुदाया तुझे हुसैन इब्ने अली का वास्ता मेरे बच्चे को माफ कर। ये है माँ बाप की बद्दुआ का असर। परवरदिगार मौत जो है जल्दी ला देता है अगर माँ बद्दुआ कर दे, और दूसरे ये है कि कब्र में मुसलसल अज़ाब, जब तक वो नाराज रहेगी अज़ाब पे अज़ाब होता जाएगा। रहमतुल लिल आलमीन थे कि वो माफ़ कर दिया जाए। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें ये तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की कद्र करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। मरने के बाद माँ बाप से सिलसिला मुनक़ता नहीं होता है, एक सिलसिला बाकी रहता है। बाद रिवायतों में यह है कि बाद औलाद ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी में आँख नहीं होते, लेकिन मरने के बाद आँख हो जाती है। अगर इंसान कब्र में जो है चला गया है और बेटा जो है माँ बाप के लिए कोई इसाले सवाब नहीं करता है तो आँख हो जाता है। अगरचे दुनिया में काफ़ी खिदमत किया हो, खिदमत करने के बाद अगर माँ बाप का जो है मरने के बाद ख्याल नहीं रखता तो खुदावंद आलम खुद ब खुद उसको आँख कर देता है। लेकिन एक बेटा जो दुनिया में आँख था माँ बाप का, उनके मर